Assalamualaikum, my name is Arlash, but everybody calls me Zair. I'm a content creator and I'm currently in the process of building my own brand. My content focuses on self-help, mental, emotional and physical health of women, specifically of mothers. My aim is to help you set and achieve targets to make you the best version of yourself. I'm also recently certified internationally to be a group fitness instructor. Assalamualaikum, my name is Zarlash, but everybody calls me Zar. I'm a content creator, I make videos and I have a parenting blog. I'm also certified to teach group fitness instruction classes, so I'm a certified trainer. And a lot of my content, apart from my fitness, focuses on self-help, the mental, emotional and physical health of women, specifically mothers in Pakistan, because जब हम माएं बनते हैं तो हम somehow or the other, हमारे शायद कल्चर का ये पार्ट है कि हम अपने आप को बिल्कुल छोड़ देते हैं. I've been there. अब अगर देखने में लग रहा है कि नहीं तो that's a big compliment, but I've been there where I've completely lost myself. I've gained humongous, exorbitant amounts of weight, और अब recently I've managed to pull myself back. Weight कैसे gain हुआ, कितना gain हुआ, इसलिए मुझे लगता है relevant है क्योंकि somehow, like I said, हमारे culture का ये part है, हमें बड़ी young age में somehow हमारे culture में embedded है कि हम अपने आप को side track करते हैं या back burner पे रख देते हैं. विद टाइम स्ट्रेस ईटिंग होती है, या जब बच्चे हो जाते हैं अपने हाउस होल्ड संभालना है, ससुराल संभालनी है, हस्बैंड को देखना है, देयर इज अ मिलियन थिंग्स टू डू. इफ यू ऐड अ वर्किंग वुमन टू दैट, देन ऑब्वियसली देयर इज एडेड स्ट्रेस. उसमें बहुत ज्यादा मुझे लगता है, मेरे केस में होता था कि फ्रिज खोला, चॉकलेट डाली मुंह में, एनर्जी मिल गई जी, लेट्स गो बैक. उसमें हिसाब ही नहीं रहता था कि दिन में कितनी चॉकलेटें. प्रॉपर बैठ के गर्म मील खाने का टाइम नहीं होता था, जो कि मुझे लगता है बहुत सी औरतों की सिचुएशन होती है. उसमें हम विद टाइम वी टेंड टू लूज आवरसेल्व्स, एंड देन ऐसा एक पॉइंट आ गया कि आई एक्चुअली फेल्ट मिजरेबल अबाउट माई सेल्फ. तैयार होने का मजा नहीं आता था, कपड़े पहनने का मजा नहीं आता था. इनफैक्ट इफ आई एम वेरी ऑनेस्ट विद यू, that's one of the reasons why I started draping sarees very frequently. If you've seen me on social media, then you know that साड़ी draping is one of my passions. वो हुआ ही तब था जब मैंने इतना weight gain कर लिया कि मुझे ना शलवार कमीज अच्छा लगता था, ना मुझे ड्रेसेस अच्छे लगते थे. जो चीज़ मैं पहनती थी मुझे अपना आप, this is not to fat shame anybody, by the way, this is not to say कि एक specific body type ही ठीक है, मुझे अपने लिए नहीं अच्छा लगता था, because एक certain set of goals होता है जो हम अपने लिए करते हैं, और मुझे खुद I wasn't happy in my own skin. उसके अलावा मुझे बहुत ज़्यादा physically I started getting very weak. घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, headaches constantly. I was in a bad space. Thankfully though, while I was being a mom, and उस टाइम पे I was a stay at home mom, ये content creation वगैरह कोई चक्कर नहीं था, तो खाली घर के काम और बच्चे और सारा household and all of that, joint family system, मेरी अपनी family, मेरी ससुराल, उसमें I was constantly drowning, I felt. उसमें ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह I had women in my life whom I would look up to, who were very regularly working out. जिनमें से in fact one was my own mom. I was very lucky, alhamdulillah. हालांकि अल्लाह का करम, she was 50 plus, but she was visibly much fitter than me, mashallah. So I would aspire to be like her one day. मैंने अपने साथ ये वादा किया कि मेरी ज़िंदगी में जब इतना टाइम आएगा कि मैं अपने लिए 1 घंटा निकाल सकूंगी, तब मैं वर्कआउट करना शुरू करूंगी. Surely enough, जब दोनों बच्चे स्कूल जाना शुरू हुए, by the way I have 2 kids and 3 cats, so वहाँ भी I have my hands full, alhamdulillah. But when both the kids started going to school, I started taking out 1 hour, just 1 hour, ladies, and that 1 hour made a huge difference. मुझे याद है एक दिन मैंने शाम की क्लास ली. I think it was yoga. शाम की क्लास ली और मैं बड़ा गिल्टी फील कर रही थी क्योंकि बच्चे घर थे, और हम अपना गिल्ट unknowingly भी प्रोजेक्ट करते हैं. और मैंने अपने हस्बैंड के साथ बच्चे छोड़े, and I just went and I wanted to do my workout. और मैंने अपनी फिटनेस इंस्ट्रक्टर से कहा, मैंने कहा बस I'm trying to bounce back now, and क्योंकि कुछ टाइम तो मेरा भी होना चाहिए. And this was a turning point in my life, because she looked me in the eye and she said, हाँ तो आप हैं ना, आप क्यों नहीं हैं? And that's when it clicked and I thought, वाकई मैं क्यों नहीं हूँ? मेरा खाना important नहीं है, मेरा पहनना, उठना, बैठना, मेरी health important नहीं है, क्यों? और अगर मैं इसका चार्ज नहीं लूँगी तो कौन लेगा? With time, alhamdulillah, I managed to lose a lot of weight. To put it into perspective for you, मैं ये बता दूँ कि जब मैं motherhood की journey पे start करी थी, I was an extra small size. वैसे भी मैं I'm 5 foot tall, so I'm very short. I was extra small से small से medium से large. जब width wise मैंने ये realize किया कि मैं extra large पे जा रही हूँ, I was like, oh my god, this is just obnoxious, because height wise मैं extra large नहीं पहन सकती थी, width wise मैं extra large में भी आ गई थी. और जब वो हुआ तो I realized कि no, this is just too much, it's obnoxious now. ठीक है, बीच में साड़ी सेव में साड़ी ड्रेप की, उसमें 2
प्लीट्स कम डल जाती है and it just encompasses you. But deep down I knew this has to change. वर्कआउट मैंने स्टार्ट वेट लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, जो मुझे लगता है बहुत लोगों का इनिशियली यही वो होता है, गोल होता है. बट नाउ आई एम एट अ पॉइंट वेयर आई से वेट लॉस नहीं, फिटनेस जर्नी कहना चाहिए, बिकॉज फिटनेस जर्नी इज समथिंग जो कि हम सारी जिंदगी करते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन हैप्पीली से आई एम हैप्पी विद माई वेट नाउ, बट देयर इज ऑलवेज मोर स्ट्रेंथ दैट यू कैन बिल्ड. फॉर एग्जाम्पल आज टुडे सुबह की जो मैंने फिटनेस क्लास ली उसमें एज अ क्लाइंट ली, नॉट एज एन इंस्ट्रक्टर, उसमें girls were doing headstands and I was like, whoa, mashallah. When you start on a journey of fitness, there's always the next level. और ये सिर्फ फिटनेस में नहीं, ये जनरली ग्रोथ में है. और मुझे लगता है हम somehow जब अपने आप को एक डब्बे में बंद कर देते हैं और हम कहते हैं हमारा सोल पर्पस अब घर देखना है, बच्चे पालना है, यस हस्बैंड को देखना है, खाने बनाना है, हाउस होल्ड स्टाफ के साथ डील करना है, yes those things are important, but that's not the sole purpose of our lives. Now I'm at a point where I want to tell every woman to allow yourself 1 hour, just 1 hour. 1 घंटा वीक से स्टार्ट करें, उसको 2 पे बिल्ड करें, 3 पे बिल्ड करें, 4 पे बिल्ड करें. विद टाइम यू विल नॉट बी एबल टू लिव विदाउट दैट 1 hour, आई कैन प्रॉमिस यू. और वेट लॉस से ज्यादा अपने लिए टाइम निकालने का पर्सपेक्टिव ध्यान में रखें. मुझे लगता है पर्सपेक्टिव शिफ्ट कर देने से मेरा जब ये दिमाग में खत्म हुई ना कि मैंने वेट लॉस करना है, स्टार्टेड वर्किंग आउट टू एंजॉय द वर्कआउट. सो मुझे पता होता था कि मेरा 1 घंटा इफ आई हैव टू गिव इट माय ऑल, दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड टू फिजिकली लूज वेट. और वो मेरे से ज्यादा मेरे साथ जो लोग थे वो लोग पॉइंट आउट करते थे, खासतौर पे जब हम फिटनेस क्लास में होते हैं, हम एक दूसरे को रोज देखते हैं. एक सर्टन सेट ऑफ गोल्स आप अपने लिए वो करते हैं, सेट करते हैं और उनको आप अचीव करते हैं. फिर आप एक और सेट ऑफ गोल्स टारगेट करते हैं. जब आप वो अचीव करने लगते हैं तो आपको उसका मजा आ जाता है, उसका नशा सा पड़ जाता है. So I would recommend everybody in every, no matter what age you are, even if you're not a mom, every woman, every man, but specifically women must work out. ये मेरा personal opinion और ये scientifically backed भी है. Women beyond the age of 30 start to lose muscle mass and then we have to actually do strength training जिससे हमारा muscle mass increase होता है. और ये मैं हवाई फायर नहीं कर रही, I'm certified to say this, I've studied this, ये सच है. हम बहुत घबराते हैं वेट लिफ्टिंग से, विच इज नॉर्मल. मैं खुद घबराती थी. मेरी जब पहली क्लास थी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तो आई वाज सो नर्वस एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बिकम अ पैशन इन माय लाइफ. फिर भी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से शुरू मत करें, आप योगा से शुरू करें. आपको डांस पसंद है, आप डांस से शुरू करें, आप पिलाटी शुरू करें. पुट योरसेल्फ इन अ पोजीशन वेयर यू कैन ट्राई डिफरेंट फॉर्मेट्स एंड सी व्हाट वर्क्स फॉर यू. पाकिस्तान ना होता मैं कहती गो फॉर अ रन, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे वेदर इतना ह्यूमिड है, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं. एक और बात जो मेरे लिए बहुत मैटर करती है इज मनी. मनी इज अ वेरी बिग मोटिवेटर. इफ आई हैव पेड एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ एंड आई नो कि मेरी 12 क्लासेस हैं या मेरी 14 क्लासेस हैं, then that's a motivator for me to get out of bed, drop the kids to school and go to gym because I know कि वरना मेरे वो पैसे ज़ाया हो जाएंगे. इसलिए, and I'm not being paid to say this by the way, but इसलिए मैं recommend करूँगी कि enroll yourself in a class, give them money, जितनी भी आपकी affordability. There are lots of different brackets that you can choose. Choose a class that you like, choose an environment that you like. ऑनलाइन करें, सुबह करें, शाम में करें, दोपहर को करें, स्टूडियो जाके करें. मुझे पर्सनली स्टूडियो जाना सुबह में सबसे ज़्यादा सूट करता है. हो सकता है आपको ना करे, हो सकता है आपको रात को सब काम करके अपना लैपटॉप ऑन करके अपने रूम में अच्छी से लाइटिंग करके ऑनलाइन सूट करे. बट एक्सप्लोर दैट ऑप्शन. मैं जिस फ्रेम ऑफ माइंड में हूँ या मेरा जो माइंड सेट है या मेरा जो बिलीफ सिस्टम है वो ये कि वेट लॉस और स्ट्रेंथ बिल्डिंग या फिटनेस जर्नी में शॉर्टकट्स नहीं होते हैं. अगर आप ये कहें जी मैं 2 दिन तक रोटियां खानी, या चलो 2 दिन तक नहीं, 2 साल तक रोटी खानी छोड़ दूंगी, चावल खानी छोड़ दूंगी, तो वो आपकी फिर स्ट्रेंथ जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी. सलादों पे एनर्जी नहीं मिलती. वो भी बाय द वे मैंने किया बिफोर आई वाज अ मॉम, फाके कर करके भी वेट लूज किया है, व्हिच आई विल नॉट रेकमेंड नाउ बिकॉज especially after you become a mother, a lot of your mental, emotional, physical strength is needed, जो कि खाने से मिलती है. मैं अगर खाना छोड़ देती हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अब जरा सी ब्लोटिंग हो गई है या वेट गेन हो गया है, मुझे तो सही मानों में टेम्पर इश्यूज शुरू हो जाते हैं. वो फिर गलत जगहों पे और गलत सिचुएशंस पे निकलते हैं. वो बच्चों पे निकलेंगे, वो घर पे निकलेंगे, अगर आप काम करती हैं तो आपकी वर्क स्पेस पे निकलेंगे. Allow yourself to eat. Just eat the right kinds of food, control your portions. Find out, get involved with professionals, with dietitians, with exercise professionals who can guide you, tell you what suits you, and inshallah you'll get there for sure. I have full faith in you, like I did in myself. और ऐसा नहीं होता कि lapses नहीं आते, ऐसा नहीं होता कि मुश्किलें नहीं आती.
लाइफ गेट्स इन द वे. अभी रिसेंटली आई कुडंट वर्क आउट फॉर 3 months, और 3 months के बाद जब मैं स्टूडियो गई तो मुझे लगता था कि मुझसे हिला नहीं जाएगा. फाइनली क्लास ले ली तो उसके 2 दिन बाद तक, लिटरली 2 दिन बाद तक, आई वॉज इन सो मच पेन, बट इट्स वर्थ इट बिकॉज अ वीक फ्रॉम दैट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बैक इन फॉर्म. अल्लाह का शुक्र. सो ट्रस्ट द प्रोसेस, गिव योर सेल्फ टाइम. शॉर्टकट्स नहीं चलते जिंदगी में, ज्यादातर चीजों में नहीं चलते, फिटनेस में भी नहीं चलते, बट 1 घंटा अपने लिए निकालें, ये मैं बहुत हाईली रिकमेंड करती हूँ. अच्छा, थोड़ा सा मैं एट दिस पॉइंट ये बात करना चाहूंगी. मैंने आपको कहा कि लैप्सेस आएंगे, वो नॉर्मल है, हर्डल्स भी आएंगे. उसकी एग्जांपल बताती हूँ. शुरू में जब मैंने अपने लिए 1 घंटा निकालना शुरू किया तो मेरी फैमिली में ये चीज, while my family is very supportive, mind you, alhamdulillah, I have a very supportive family who help me pursue my dreams and whatnot. लेकिन उनके सिस्टम में ये बात इस तरह थी ही नहीं कि this is something that I will seriously do. So for example, if I would ever have to go when the kids were at home, or when there was nobody to watch the kids, then my husband had to be, I had to sit down and tell him कि देखो this is now a priority. I actually had to tell him कि 1 घंटा पूरे दिन में मैं मांगती हूँ, 24 hours में, please make that a priority, make it happen. ये एग्जाम्पल इतनी डिटेल में, इतना खुल के, इतना ऑनेस्टली बताने की 2 रीजन हैं. एक तो आई ऑलवेज लाइक टू बी ऑनेस्ट सो दैट इट्स रिलेटेबल, सो दैट यू डोंट थिंक कि हाँ जी ये तो बैठी है और बैठ के दफ्तर में बड़ी बड़ी बातें कर रही है और पीछे इसकी 3 नैनीज हैं जिन्होंने बच्चे भी संभाले हुए और 4 कुक्स हैं जो कि खाना बना रहे हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. I am a full-time mom and I'm a part-time anything else, चाहे वो फिटनेस है या वो कंटेंट क्रिएशन है या वो जो भी है. उसमें I just had to make it a priority and make it a part of my household as well कि ये एक चीज है जो कि दिस इज इम्पोर्टेंट. और विद टाइम अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एट अ पॉइंट जहाँ मेरे बच्चे भी कहते हैं मामा प्लीज गो एंड वर्कआउट. जहाँ मेरे हस्बैंड ने लिटरली मुझे रिसेंटली ये कहा है कि सर यू नीड टू वर्कआउट बिकॉज यू आर अ बेटर पर्सन व्हेन यू वर्कआउट. द रीजन आई एम टेलिंग यू दैट इज दिस. वर्कआउट से या फिटनेस जर्नी से एक तो आपका एक अपना सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली, वर्कआउट करने से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं. सो यू आर एक्चुअली लेजिटिमेटली अ बेटर पर्सन बिकॉज यू फील हैप्पियर. उसका एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि जब हम बोर्ड होते हैं या जब हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं या जब हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो जो हम फ्रिज खोल के चॉकलेट मुंह में डाल लेते हैं या जो हम हैंडफुल ऑफ नट्स मुंह में डाल लेते हैं सोच के कि नट्स तो बड़े हेल्दी हैं और वो एक हैंडफुल से 10 हैंडफुल्स कब बनते हैं हमें पता नहीं चलता, उनका जो हेल्थ बेनिफिट है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है. उसके बजाय जब आपने वर्कआउट किया होता है तो वो हैप्पी हार्मोन सारे दिन आपके साथ रहते हैं, वो सेंस ऑफ अचीवमेंट सारा दिन आपके साथ रहता है. You actually don't need to open the fridge and take out a chocolate and eat it because you're so, I don't want to say full after working out, but you don't crave anything else to make up for that emptiness. Yeah. And I do know what I'm talking about because I've recently struggled with depression. Life is hard, guys. Life is hard for everybody. उसमें आप emotionally भी turmoils गुजार रहे होते हैं, आप stressful situations भी गुजार रहे होते हैं. तो जब आप अपना ख्याल करते हैं उससे you become a better person. And your household also becomes happier. मुझे लगता है मदर्स के लिए इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिर like I said now, my household knows, everybody in my household knows कि मामा के वर्कआउट से सारा घर खुश रहता है. और फिर जब वाकई ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि आपको भूख नहीं लगती, आप खाना खाएं लेकिन आप कंट्रोल में खाएं, आप अपने आप को ज़रा सा वॉच करके खाएं, पानी पिएं. अब आज फॉर एग्जाम्पल दिस इज व्हाट आई यूजुअली हैव, आई हैव अ साइज स्पीक बॉटल जो कि दिन में अगर आप 2-3 दफ़ा पी लेते हैं तो you're fine, you're sorted. Then you don't need to, जिसको हम स्ट्रेस ईट कहते हैं या एम्प्टी ईटिंग जिस तरह से होती है उस तरह से. एक बात है जो मैं पॉइंट आउट करना चाह रही हूँ वो ये है कि हम सपोज अब आपने मेरे कहने पे या इर्द गिर्द जो भी मोटिवेटर्स हैं उसके बेसिस पे आपने पैसे दे दिए और आप अब जिम जा रहे हैं या आप किसी ग्रुप फिटनेस क्लास जा रहे हैं. स्पेशली जब आप ग्रुप फिटनेस क्लास जा रहे हैं, अब आप जा रहे हैं और आप खड़ी हैं और आप वर्कआउट कर रही हैं और आप सोचती हैं यार ये तो बात नहीं बनती, दिस इज जस्ट टू मच, और आप साइड पे बैठ जाती हैं. एक राउंड गुजरता है, दूसरे राउंड में आप फिर ये करती हैं, फिर वो इफेक्टिव वर्कआउट नहीं है. अगर आपके लिए एक वर्कआउट मुश्किल है, फॉर एग्जांपल जंपिंग जैक्स मुश्किल है फॉर वॉट एवर रीजन, ज़रा टेक्निकल बात करूँ तो जंपिंग जैक्स अमूमन मदर्स के लिए ज़रा सा मुश्किल इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा पेल्विक फ्लोर रिलैक्स कर जाता है. जब हमारा पेल्विक फ्लोर मसल्स रिलैक्स कर जाते हैं तो जो प्लायोमेट्रिक या जंपिंग एक्सरसाइजेज होती हैं उसमें हमें ज़रा सी दिक्कत होती है, एटलीस्ट इन द स्टार्ट. एक तो ये फाइंड आउट करें, गेट इन टच विद अ प्रोफेशनल. फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल कोट किया उसमें आपके लिए पिलाटीज इज द सोल्यूशन. आप पिलाटीज करेंगे, आपका पेल्विक फ्लोर मसल्स दोबारा से स्ट्रेंथन होंगे, फिर आप जंपिंग जैक्स भी कर सकेंगी. लेकिन अगर किसी दिन आपको लगता है कि आप जंपिंग जैक्स नहीं कर सकती, बैठे मत, खड़ी हुए और उसी की सिंपल वर्जन करें. वो आपको कौन बताएगा? दैट्स वेयर यू गो टू एन एक्सरसाइज प्रोफेशनल. स्पीक टू योर एक्सरसाइज प्रोफेशनल्स, टेल देम
ये जो ग्रुप फिटनेस क्लासेस होती हैं, जिस मॉडल में मैं बहुत बिलीव करती हूँ, उसमें एक कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है। उसमें फिर आपके जो हेल्थ इश्यूज होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इवन इमोशनल मेंटल जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो आप एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। आपका एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जैसा बन जाता है और आपके इंस्ट्रक्टर को पता होता है आपके क्या कंसर्न्स हैं। वो आपको एक एक्सरसाइज देंगी और उसके बाद वो आपके पास आएंगे और आके कहेंगे आपने ये वाली वर्जन करनी है। उस पर आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करें, आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करें, और विद टाइम आप खुद देखेंगे कि आप अपने आप को एक्चुअली नहीं पहचान सकेंगे, इंशाल्लाह। आई हैव कंप्लीट फेथ इन यू मामा। जब हम सबका ख्याल करते हैं, घर में हर एक का, घर के बाहर हर एक का, देयर आर सो मेनी हैट्स दैट वी वेयर, वी आल्सो नीड टू वेयर वन कैप व्हिच सेज आवर ओन सेल्फ हेल्प, आवर ओन सेल्फ केयर। मेरा ये, बहुत से लोग जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो ये कहती हैं कि इस पर बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। मेरी अपनी ये राय है, एक जोड़ा कम बना लें, डजेंट मैटर। अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ पे भी इन्वेस्ट करें, वो भी बहुत ज़रूरी है। आई हैव कंप्लीट फेथ इन यू, यू गॉट दिस, स्टेप आउट, इंशाल्लाह अल्लाह बरकत डालेगा। Thank you so much for watching, guys. Also, if you found this video helpful, useful, or you learned something new, or if it was entertaining for you, then please do make sure that you follow me. मेरा बहुत focus self help पे है, women के लिए, mothers के लिए, and make sure that you follow Scary Ammi. I'd also like to take this chance to thank Scary Ammi, Aisha Nasir specifically, for this opportunity, because I think it's very important that we have a community of mothers where we bring each other up, where we build each other up. बहुत हो गए वो ज़माने के mothers बन गए तो बस अपने आप को छोड़ दिया। There are things we can do if we allow ourselves to go into a growth mindset. हम सब कर सकते हैं. Thank you so much for watching, guys. Take care of yourself and those around you. Allah Hafiz.